Yes. So good evening all. हाय वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछला 2 घंटा मेरे लिए जो है एक डाउन द मेमोरी लेन की एक सफर थी। 40 बच्चे, छोटे छोटे गांव से आए हुए बच्चे जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर लिया है और आज वो सीए, कॉमर्स, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स जैसे अलग अलग प्रोफेशंस में अपनी लाइफ बना रहे हैं। 95 ऐसे ही बच्चे जो वर्क इन प्रोग्रेस हैं और 10 बच्चे जो हर साल एक नया सपना लेके विसामो में जुड़ते हैं। वेल फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शुभजीत सेन, विसामो टास्क फोर्स का आई एम अ मेंबर, अ प्राउड मेंबर फॉर लास्ट 15 ईयर्स। एंड बिलीव मी, लास्ट 2 घंटे में जब मैंने कुछ डेटा मांगा विसामो से, वॉट एवर आई हैव इन फ्रंट ऑफ माई आईज इज रियली एन आई ओपनर फॉर मी। और मेरे दिल में यही एक गाना निकल कर आता है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो फूल खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। अगर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये बात खरी उतरती है इतने सालों में, तो आई थिंक इट्स विसामो किड्स फाउंडेशन, जहां पर हर एक टीचर हर बच्चे के लिए एक माँ बाप है, हर बच्चे के लिए एक गुरु तो है ही, उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। I welcome you all again at this entire function called दास्ताने विसामो, जहां पर हम हमारे टीचर्स के साथ आपके बीच में हैं अपनी दिल की बात आपके सामने खोलकर रखने के लिए। सबसे पहले जरूरी है कि हम विसामो की एक सैर को चलें। तो आइए मेरे साथ, और जिग्नाशा मैम की वो छोटी उंगली पकड़कर हम उनके साथ चल पड़ते हैं इस अंडर प्रिविलेज्ड फॉस्टर होम फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, not children, the talented children. And let's go with her to the Visamo campus. So I invite you, Jignasha ma'am, to take us through this journey. Thank you, sir. Good evening, all. My name is Jignasa Nayak. I am associated with Visamo since last 5 years as a teacher. Today, I would like to share my experience at Visamo Kids Foundation. Kunal bhai, will you please share the slide? Just give me a minute. Yeah, no problem. जिग्नाशा जी, कैसा रहा आपका ये 5 सालों का एक्सपीरियंस? Okay, I think बहुत ही okay. superb, sir. Okay, please. Yeah. Yes, that is what I'm sharing now. Right. Me as a teacher is always a learner, and it is true for each and every human being. Next slide, please. We had gone for a educational trip at Science City, Ahmedabad. Students had so much fun and they had learned so many things from this visit. It was a wonderful educational trip. Next slide, please. Yes, here if you see, these children are playing a game. Through the game, they are enhancing their vocabulary skill as well as spelling skills. So basically, we are doing different activities on daily basis. Our counselor has suggested that once in a week, student must do some activity. So as part of the activity, this is a reading activity which children are doing. Next slide, please. Yes, children are doing a maths project in which they are actually measuring the length of the surface so that they can understand the concept of area and perimeter. Next one. Yes, this is their home, as sir said in the beginning.
they know that this is their home, so that it is their duty also to make it clean and arranged. So children are here. If you see, this is their study hall, and they are arranging. They are taking the responsibility to keep their area clean. Next one. Yes. As earlier mentioned, these are all talented children. Everyone has hidden talent in them. Once they taught me how to use paper folding for making the bookmark. So it was a wonderful experience. Yes, this is like we always try that my student excel in studies. We always do some like trial and error activity so that they move further and they improve in their marks. So basically, when this is like when we are working on one-to-one basis, they are really focused and very attentive, and it gives me so much happiness. Every year we celebrate a scholarship day. Children who have done good in their academics, they are awarded every year. This is Visamo's event. Once in a year, in the beginning of the year, we celebrate it. This is the last year picture. It's just the entrance. So this is a picture of Gajjar Hall. Last year we celebrated Scholarship Day. Thank you. Next one. Yeah, we, the whole team of Visamo, this last year before Diwali, we visited the homes of our children so that we can also interact with their parents. It was a wonderful experience. Tijanbai, who is Padma Vibhushan awardee, she came to our institute and inspired our children. It was very inspiring experience for us and children as well. Yes, teaching is my passion, and it has given me immense happiness throughout my journey. Thank you so much. Thank you so much, Jignasha ma'am, for such a wonderful journey to Visamo. Yesterday was a great occasion of Happy Teachers Day, and I am very happy to let everybody know that Visamo Kids Foundation, for their relentless, pursuit of excellence, has been given a special award by the Public Relations Society Ahmedabad chapter, which is a national body, and there were a lot of dignitaries on the dais. Visamo has always been taken care of by Visamo Task Force, mentors, educators, partnering schools, and how from a small town attitude, this all children are groomed to be real winners. That's a real case study at Visamo. अभी आगे चलते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारे एक और बहुत पैशनेट टीचर दक्षेश जी का, जो अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं दास्ताने विसामो में शेयर करेंगे. दक्षेश जी. Hello. Yes, sir. Sir, am I audible? Absolutely, sir. Okay. Good evening, everyone. मेरा नाम दक्षेश पटेल है. मैं पिछले 2.5 साल से विसामो के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे साथ सीनियर बॉयज़ मैथ सीखने आते हैं जो कि 10th तक होते हैं, स्टैंडर्ड 10th तक. एक्सपीरियंस की बात करें तो अभी मुझे एक बच्चा याद आ रहा है जिसका नाम है राज. 2 साल पहले मेरे साथ था और वो उस वक्त 9th स्टैंडर्ड में था, लेकिन उसको मैथ्स में बेसिक बहुत प्रॉब्लम्स था, तो वो ऑलवेज या तो फेल होता या तो बहुत कम मार्क्स आते थे उसके. उसको आता था बहुत कुछ, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया था उसका. तो मैंने धीरे धीरे उसके बेसिक्स पे काम किया. और एक बात उसकी स्पेशलिटी ये थी कि जब भी वैकेशन आता था तो बच्चे घर जाते हैं, तो घर पे वो जॉब करता था गैरेज में, मोटर मैकेनिक को कुछ भी, मतलब बाइक सर्विसिंग का काम सीखता था वो, और उसको वो अच्छा आता था. तो वो स्पेशलिटी मेरे ध्यान में आई और मैंने उसको बोला कि भाई, जो वो जब भी बोलता कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उसको बोलता था कि ये जो यहाँ पे दूसरे बच्चे हैं वो नहीं कर सकते जो अभी तू कर रहा है. तू बाइक सर्विसिंग कर सकता है, वो लोग नहीं कर सकते. तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा. फिर उसको 2-3 एग्जाम्स गए, 3 महीने बाद वो आया और कभी कभी ऐसा भी बोलता था कि सर ये सम नहीं करना है, ये नहीं आता है.
तो मैं उसे बोलता था कि तुझे आता है तू कर, मैं उसको उसके हाल पे ही छोड़ देता था। बाद में वो कभी भी कहीं भी आंसर लेके आता था, तो तब पता चला कि उसको आता है लेकिन उसको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर 3 महीने बाद एग्ज़ाम्स आए और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो मेरे साथ आया और बोला सर मैं पास हो गया। तो वो बहुत ही अच्छा और यादगार मोमेंट था मेरे लिए। और आज वो एक अच्छी जगह पे जॉब भी कर रहा है और एक डांसर है अभी, और अभी पढ़ाई भी कर रहा है साथ में। और उसका उसी का एक दूसरा एग्जांपल लेते हुए, जब भी मैं उसको कोई क्वेश्चन देता था या कोई टफ क्वेश्चन आता था, तो वो समझ नहीं पाता था। उसको आता था सब, लेकिन उसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता था क्योंकि वो इंग्लिश में होता था। जब भी मैं उसको वो क्वेश्चन ट्रांसलेट करके देता था, तब वो ऐसा बोलता था कि ये तो मुझे आता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था लैंग्वेज का, जो अभी उसके ऊपर से मुझे ये जानने को मिला, अभी-अभी जो नई गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने वाली है, तो उसमें ये पॉइंट है। तो कहीं न कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पॉइंट उसमें ऐड किया है कि लैंग्वेज के ऊपर उतना मतलब उसका उतना वो बैरियर नहीं होना चाहिए नॉलेज के लिए। तो अगर उसको मदर टंग में, यार बच्चा सीखना चाहिए बस। मदर टंग में सीखता है तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि कहीं पे कोई काम हो रहा है या आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो, तो जो कार मैन्युफैक्चरर है वो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन जो गैराज वाला है जो रिपेयर करता है, आपकी कार कहीं हाईवे पे बंद हो गई, तो जो रिपेयर करने वाला है वो कभी स्कूल उतना हाईली एजुकेटेड नहीं होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नॉलेज उसका बहुत हाई होता है। तो वही है कि क्योंकि उसने, और वो कभी इंग्लिश में नहीं सीखा होता है, वो अपनी मदर टंग में सीखा होता है। तो काम आगे चल के जो हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, जो इंडस्ट्री का सीधा लिंकेज है इस चीज़ से, जो बेस है वो स्कूल है। इंडस्ट्री का सीधा लिंकेज इससे है। हम अभी बात करते हैं कि मेक इन इंडिया और वो सब जो भी हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इसका सीधा रूट यहीं पे आता है कि बच्चे, किसी को भी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए उसका, और वो कंसेप्ट अगर अपनी मदर टंग में सीख रहा है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। हम मेड इन जर्मनी या मेड इन जापान की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उसके मैनुअल में सबसे पहले उनकी लैंग्वेज का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, पहले उनकी लैंग्वेज होती है, बाद में सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो हमें वो चीज़ समझनी चाहिए कि अगर बच्चा इंग्लिश नहीं भी सीख रहा है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में सीख रहा है, मदर टंग में सीख रहा है, तो वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, बस मेरा इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने थैंक यू मुझे सो मच, थैंक यू सो मच दिया दक्षेश बोलने जी। के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दक्षेश जी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपकी बातें सुनकर तो मुझे सुपर 30 के ऋतिक रोशन की याद आ गई, जिन्होंने ये चैलेंज लिया था कि वो इसी तरह स्मॉल टाउन के सोच के बच्चों को जो टैलेंटेड हैं उनका एक पूरा बैच आईआईटी में क्रिएट करेंगे। हैप्पी टीचर्स डे टू यू सर अगेन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर। मैं थोड़े से फैक्ट शेयर करूंगा हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि 15 साल पहले जब मैं इस फैसिलिटी में पहली बार आया था, तब हमारा जो है सीजी रोड पे एक ऑफिस हुआ करता था। वी हैड अ प्लेस देयर एंड देन वी शिफ्टेड टू दिस न्यू फैसिलिटी एट बोपल, विच इज अ वेल फर्निश्ड फैसिलिटी फॉर द किड्स। तब हमारे इसमें कुछ बच्चे हुआ करते थे, चंदानी व्यास, राजू सापरा, पिनल कटारा, जिग्नेश कलाल। मैं हमेशा से सोचता था कि ये बच्चे आप जैसे टीचर्स के हाथ में ग्रूम होकर फिर कहाँ गए। थोड़ी देर पहले सुदेशना जी से मैंने एक लिस्ट मांगी कि अगर 40 बच्चे हमारे यहाँ से निकल गए हैं तो हमारे पास उनकी लिस्ट है, एंड बिलीव मी शी वाज एबल टू गिव मी अ लिस्ट इन 1 मिनट। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि चंदानी व्यास वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल आईटी कंपनी की इंजीनियर बनी। राजू सापरा जो हैं वो एक स्पोर्ट्स के कोच हैं डीपीएस स्कूल में। पिनल ने सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ के एक टीचर बनी वो। जिग्नेश कलाल बिकेम एन आर्किटेक्चर। ये जो फील्ड में गए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं इनसे कभी पूछता था कि आपका आगे सपना क्या है लाइफ में बनने का, बिलीव मी इन चारों बच्चों का तो यही सपना था जो इन्होंने आज किया है। एंड दैट इज आई थिंक अ क्रेडिट टू विसामो किड्स टीचर्स एंड फाउंडेशन के बच्चों को सिर्फ सपना देखना नहीं सिखाते, उनके स्किल्स को समझ के उनके सपने को उसी डायरेक्शन में ले जाते। थैंक यू सो मच सर अगेन। अब एक छोटा सा मोड़ लेगा दास्तान विसामो, क्योंकि हमारे टीचर्स इतने पैशनेट हैं, क्रिएटिव हैं कि हम अलग अलग तरीके से आज हमारे इमोशंस को आपके सामने पेश करेंगे। बहुत सारी क्रिएटिविटी आपको दिखेगी। अब मैं इनवाइट करता हूं यामिनी मैडम को आपके बीच,
जो एक बड़े ही क्रिएटिव वे में शी विल शेयर हर दास्ताने विसामो. यामिनी मैम. Thank you, sir. Good evening, everyone. I am Yamini Joshi, and I have been associated with Visamo Kids Foundation since last 2 years. I'm glad to be part of Visamo Kids, which is working for the betterment of the underprivileged children. So, in the process of teaching children at Visamo, I have also learned a lot many things for which I'll always be grateful. So, to make this evening more memorable, I have penned down a small poem regarding our experience and feelings with Visamo. I start. कितने पिछड़े बच्चों को तू कर रही आबाद, वंदन ए विसामो तुझे शत शत धन्यवाद. बच्चों को तू ऐसे सींचे जैसे पौधों को माली, ध्यान रखती है इनका जो माँ करे रखवाली. खुश है बच्चे यहाँ भूल कर अपने सारे अवसाद, वंदन ए विसामो तुझे शत शत धन्यवाद. कहाँ कहाँ से आए पर मिलजुल कर है रहते, तेरी कृपा की कश्ती में सब मस्ती में बहते. इनकी हंसी ठिठोली से है तेरा गुलशन आबाद, वंदन ए विसामो तुझे शत शत धन्यवाद. तेरे बच्चों के लिए जो सेवारत है निष्काम, उन सभी को करते हैं हम सैकड़ों सलाम. नियमों के इस जंगल में आप हैं अपवाद, वंदन ए विसामो तुझे शत शत धन्यवाद. बहते हैं हम मौज बनकर तेरी रवानी में, हमें फक्र है कि हम भी हैं तेरी कहानी में. तेरे बहाने हमें भी कोई कभी करेगा याद, वंदन ए विसामो तुझे शत शत धन्यवाद. थैंक यू. यामिनी you. जी, हमें फक्र है कि आप आज हमारे बीच में हैं. The way you wonderfully started your introduction in English, shifted to a poem which has been penned down by you in Hindi. You know, I think all the watchers will realize that how important communication is and how seamlessly we can switch from one idea to another. Wishing you very happy Teachers Day again, Yamini ji. Thanks a lot for being here with us. Going ahead, we have a very creative teacher who is coming up with another very creative idea. And I will now invite Anita ji, Anita ma'am, to please come and share her thoughts with us. Yes, Anita ma'am. Am I audible? Absolutely. Please go ahead. Yeah. Ji. Good evening, all. My name is Anita Vaja. I am associated with Visamo Kids Foundation more than 2 years as a mother teacher. When the word comes mother teacher, it means your role is a combination of both mother and a teacher. We give love, care to the child as a mother and add value to their life by educating them as a teacher. We help them overcome challenges of life. I feel so grateful for the opportunity and the satisfaction I have gained. With all this, I would like to present a small story in the form of poem, which describes the journey of every kid that have ever been associated with Visamo. So here we go. एक छोटे से गांव का लड़का पहली बार विसामो आया, पहली बार विसामो आया. माता पिता से बिछड़कर उस रात वह सो नहीं पाया. थोड़े रातों तक और तकिया गीला हुआ. धीरे धीरे विसामो ने उसके दिल को छुआ. औरों को देख मुस्कुराने की कोशिश वो करने लगा, पर फिर भी अंदर से वो सहमा हुआ सा लगा. खाना पीना सारी चीजें नई लग रही थी, पर फिर भी अपने भाई बहन की याद उसे सता रही थी. बड़े दोस्तों के साथ उसे खेलना कूदना भाया. एक छोटे से गांव का लड़का पहली बार विसामो आया. थोड़े ही दिनों में अब स्कूल जाना शुरू हुआ. अभी तो संभला था वो, औरों के बीच सहन सा गया. ऐसे करते महीनों सालों बीत गए. अब यह उसे अपने घर सा लगने लगा. दोस्तों से मस्ती, टीचर से शरारत, रोज नई पढ़ाई और ढेर सारी यादें बनने लगी. अब जब वह गांव जाता तो लोग उसे शहर के बारे में पूछते लगे और बड़े मजे से वो अपनी कहानियां सुनाने लगा.
एक छोटे से गांव का लड़का पहली बार विसामो आया। कभी बीमार होने पर माँ जैसा प्यार मिला, कभी शरारत करने पर पापा जैसी डांट मिली। ऐसे करते 12 साल बीत गए और एक बार घर छोड़ने का वो दिन आया। आज यह घर छोड़ने का न तो उसे डर था, पर फक्र से उसने जो मिला उसका उसे गर्व था। आंखें नम थी अंदर से, पर दिल बहुत ही खुश था। कुछ बनकर कुछ सीख कर जाने का उसे यहाँ से गर्व था। एक छोटे से गांव का लड़का पहली बार विसामो आया, पहली बार विसामो आया। थैंक यू सो मच। Wow, thank you so much, Anita ji. I can see a little bit of tears in your eyes, you know, with this poem because it takes back to your journey of दास्तान विसामो. बहुत सुंदर तरीके से आपने एक पूरी जर्नी बयां कर दी. एक चीज आपके और यामिनी जी के प्रेजेंटेशन में जो कॉमन लगा, कुछ वर्ड कॉमन थे. फक्र, गर्व. Yes, at Visamo Kids Foundation, you know, the children ought to be proud that they are a part of this institution, because all the teachers are equally pride, you know, filled with pride when they look at their kids. मेरी डॉटर जिस स्कूल में पढ़ती हैं वहां पर भी विसामो के कुछ सीनियर बच्चे हैं, और मेरी डॉटर को उनका नाम याद नहीं आता, तो वो कहती हैं वो हमारी विसामो दीदी हैं. आई एम श्योर कि आपके बच्चे जब स्कूल्स में जाएंगे, दे विल सेट एग्जांपल्स, they will not have any fear for life, and they will be the best of Visamo bhaiyas and didis that the society will ever get. Thank you so much. Thank you so much, Anita थैंक ji. यू सर। सारे टीचर्स अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं. ये कोरोना नाम का जो एक पैंडेमिक आया है, उस वजह से सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और विसामो भी अनफॉर्चुनेटली सुमसाम हो गया है. ऐसे में हमारे यहाँ की एक टीचर भक्ति जी ने कहा कि नहीं, मुझे सबकी यादें ताजा करनी पड़ेंगी और याद दिलाना पड़ेगा हमारे बच्चों के बारे में. एंड सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्रेजेंट यू कौन बनेगा विसामो टीचर, अ गेम शो which, you know, quiz master Bhakti ji will perform. She will introduce herself, and there is a proud contestant all the way from Kutch, the land of Helaro, you know. वहां से हमारे बीच में रमीला जी ज्वाइन करेंगी as a teacher from the on the hot seat. So Bhakti ma'am, I think it's time to play the music. Yeah. So, yeah. I welcome Ramila ma'am on the hot seat. My name is Bhakti Jethwa, and I'm thankful to Visamo to organize such a wonderful webinar amid this pandemic. So my first question to Ramila ma'am is about two students. दो चुलबुली लड़कियां हैं जो हर वक्त हर काम साथ में करती है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, मस्ती हो या फिर कोई खाना पीना हो या घूमना हो. अब बताओ कौन है वो? Hello, good evening everyone. I am Ramila Shabadia, a teacher at Visamo from past 2 years. I am having a great experience working at Visamo. I am thankful to Celebrate Visamo and the Summer Group for making me a part of their family. Thank you all. Bhakti, I think that two girls, I think it's Mittal K and Mittal D, right? No. Oh, now you can do God. phone a friend. No. रामीला जी, अब आपके पास एक फोन अ फ्रेंड का You ऑप्शन have है. a lifeline, yes. You have a lifeline. हमारे पैनल में से किसी को भी आप जो है खो दे सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई करें कि ये दोनों गर्ल्स कौन Anita है. ma'am. अनीता मैम. Any guesses? अनीता मैम. अनीता मैम has got the hot seat. अनीता मैम, yeah. जैस्मिन एंड स्मिता। Yeah, you are right. Oh, wonderful, wonderful. अनीता मैम जो है कौन बनेगा करोड़पति की पहली विनर है. प्लीज गो अहेड भक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा शांत है, उसको पढ़ना पसंद है, एकदम पंक्चुअल स्टूडेंट है, अपना सब काम कर लेता है टाइम से और अपने टीचर्स का भी बहुत ध्यान रखता है. रमीला जी. Elvis? No.
ओह, फिर Oh, आपको no. किसी को देना पड़ेगा, खो दीजिए। Yamini. Is it Utpal? No. ओहो, वाओ। Any more Oh. guesses? अब हम हमारे बच्चों को भूलते जा रहे हैं। ओके, सुरेश, No, Or Harshad? no. अरे क्या बात है। Harshad, yeah, Yamini is right. हर्षद, ओके, लेट्स क्लैप फॉर हर्षद। ग्रेट। Now next. अब बारी आती है उससे बिल्कुल ऑपोजिट स्टूडेंट की, हर्षद से बिल्कुल ऑपोजिट क्वालिटीज वाले स्टूडेंट की, जो बिल्कुल स्टबन है, मूडी है, मतलब उसको पढ़ना कम पसंद है, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्टूडेंट है। थैंक गॉड मैं विसामो में नहीं हूँ, Oh, God. मेरा नाम आ जाता। Arna. रमीला जी थोड़ा ट्राई करो, कम ऑन, यू कैन डू इट। It's Abhay. ना, अरे रे, रॉन्ग। अरे यार, एनीबॉडी, आप किसी को पास कीजिए रमीला जी, देखिए कौन अनीता आपको। अनीता मैम। सुरेश, नो, Oh, no. अरे बाप रे बाप, Yamini. सब भूल गए अपने स्टूडेंट्स को सब अभी। भूल गए। भक्ति जी। Mayur. नो, Is it Vikas? रॉन्ग आंसर। आप दे दीजिए भक्ति जी, आंसर दे दीजिए। एनीवन एल्स? Ankur. नो, द करेक्ट आंसर इज माही। ओहो, माही वे। Oh, God. ओके ओके, भक्ति जी आपने ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं, मुझे तो लगता है अमिताभ जी की हॉट सीट गई। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट वन। अब जो बच्चा है उसको उसकी टीचर से एक निकनेम मिला है, और वो निकनेम है मकोडो। ओहो, Oh, my God. हाँ, तो ये बच्चा ऐसा है जो किसी की भी बात नहीं मानेगा, लेकिन उसकी टीचर की सारी बातें मानेगा। क्या बात है। रमीला जी, बहुत टफ था ये। Mayur. एग्जैक्टली। ओह, वेरी गुड, शाबाश, राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट। अब जो बच्चा है वो बिल्कुल बिंदास है, उसको जो मन में आया वो करेगा, पूरा टाइम मस्ती करेगा, परेशान करेगा किसी को, लेकिन ये बहुत ज्यादा इमोशनल है। Emotional. Tamanna. नो, Yamini, pass to you. Is it Abhay? करेक्ट। वेरी गुड यामिनी जी, Correct वेरी गुड, answer. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब जिसकी बारी आती है वो एक प्यारी सी छोटी सी लड़की है, जो हमेशा अपनी टीचर से डांट खाती रहती है कि ओहो। जल्दी लिख, क्योंकि उसको अपने हैंडराइटिंग से बहुत प्यार है। क्या बात उसको है। हमेशा अपनी बुक नीट एंड क्लीन चाहिए। उसकी टीचर ने अगर उसकी बुक पे कुछ स्क्रिबल किया तो वो टीचर को भी डांट देगी। वाओ, Oh, my God. Jasmine. नो, Yamini, ma'am. Bhakti ji, I think you have really done a great homework going into the skin of every child. Yeah. Is it Smita? Bhakti? नो, उसको ड्राइंग करना और कलरिंग करना बहुत Okay, okay. पसंद है। Tamanna. नहीं, अरे कौन है, बोलो बोलो कौन है। Mahi can't be again. No. तेजस्विनी, हॉट सीट पे कंटेस्टेंट स्विंग होते जा रहे हैं, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा है। तेजस्विनी, रॉन्ग। अरे बाप रे, आप बता दीजिए भक्ति जी। आभा, ये करेक्ट आभा, आंसर। ओके, आभा। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन। अब बारी आती है विसामो के सबसे छोटे से स्टूडेंट की, ओह वाओ, जो सबसे छोटी सी प्यारी सी लड़की है, और उसको सब परेशान करते हैं बेचारी को। अरे बाप रे, हाँ ये मेरी फेवरेट है, तमन्ना। करेक्ट। ये एक बार जरा केबीसी का म्यूजिक फिर से बजा दीजिए। आई थिंक 2-3 करोड़ तो हमें भेजना पड़ेगा रमीला जी के लिए। थैंक यू But- सर। but it was a very interesting and tough kind of question. So
You know, Bhakti ji, I can see your future as a quiz master as well. Very well conducted. Thank you. एक बार म्यूजिक फिर से सुना दीजिए तो हम आपका ये राउंड फॉर्मली क्लोज करते हैं. एक बार और सुना देंगे केबीसी की म्यूजिक. या ओके. थैंक यू सो मच देवी और सज्जनों. तो ये थी हमारी जो है मैडम भक्ति, जिन्होंने ये क्रिएटिव चैलेंज लिया कि मैं बच्चों को याद करके सबके सामने उनके कुछ टैलेंट्स को और उनके कुछ इंटरेस्ट को लेकर आए. बिलीव मी, बिहाइंड एवरी किड you will not find teachers here. You will find their fathers, mothers, mentors, and people who really want to see how every child is getting groomed. And to take this journey ahead, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए मैं अब हेमंत सर को इनवाइट करूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें. हेमंत सर. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत है. मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ विसामो में. मैंने 2018 से ज्वाइन करा था विसामो को. तो फर्स्ट बैच जो मुझे मिला था, निराली और निहारिका, मतलब टीम इंडिया के ओपनर है तो मेरे लिए भी ओपनर है, सचिन सहवाग की तरह. और कैलेंडर भी मेरे लिए तो यही है. उसमें से निराली जो है उसका रोल है सहवाग वाला, निहारिका का है सचिन वाला. फर्स्ट डे मुझे याद है जब मैंने क्लास ली थी, एक हंस रही थी और एक रो रही थी 10 मिनट बाद ही, क्योंकि एक को नहीं आ रहा था, दूसरी को भी नहीं आ रहा था, पर नहीं आने के कारण एक रो रही थी एक हंस रही थी. वो निराली जो है वो कह रही थी मैं तो फेल होने वाली हूँ. क्या मतलब? और वो जो है लगी हुई है निहारिका, प्रैक्टिस करे हुए. क्लास खत्म हो गई, क्लास ओवर, नेक्स्ट डे होता गया. ये कंटिन्यू चला, 1-2 महीने चला. पर हाँ, दोनों पास हो गए, अच्छा लगा. लास्ट डे जब रिजल्ट आया था, कहा था अब हम कभी नहीं मिलेंगे मैथमेटिक्स से, तो हमने बस दी एंड है, हमारी लाइफ का ये लास्ट था. जो लास्ट जो 12th में आए कॉमर्स जो लिया उन्होंने, उसमें डिफरेंशिएशन लिमिट्स आ गए, वापस वही फेस आ गया कि अब क्या करें. पहले तो चलो एलसीएम अलजेब्रा था, अब तो डिफरेंशिएशन लिमिट्स है. वो निराली वैसी ही सहवाग की तरह है, मतलब कुछ भी आ जाए. मैं उसका टेस्ट लेता था तो वो आती थी, पहले उसको जो आता था वो लिख देती थी, उसके बाद क्वेश्चन देखती थी, हाँ ये क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन है वो लगा दिया, ये क्वेश्चन है ये लगा दिया. और निहारिका के रोती रहती थी, क्या करूँ क्या करूँ. ये जो स्टार्टिंग का और ये लास्ट वाला जो फेज था, ये इन दोनों का था. इसके बाद आता है विजय मकवाना और उर्मिला मकवाना. विजय मकवाना आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था और उर्मिला नीट की. तो उनके साथ बहुत अच्छा मेरा चला. फिजिक्स मतलब बहुत पढ़ते थे हम, कोई टाइम नहीं था, कुछ लिमिट नहीं थी, कभी भी क्लास ले लेते थे. और वो क्लास का जो होता था कि मतलब कोई किसी ने, मैंने क्वेश्चन दिया थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर कर दिया तो वड़ा पाव पार्टी एक जो होती थी वो एक अलग ही थी. हुआ जेई मेंस हुआ, इसका विजय का रिजल्ट आया, जनवरी में ही आया था. मॉर्निंग में धवल करके एक स्टूडेंट है, वो मिला था मुझे रिजल्ट वाले दिन ही. तो बड़ा नाम हो रहा था, विजय का रिजल्ट आ गया, अभी आईआईटी में हो गया, मेंस क्लियर हो गया. मुझे आके कहता है कि सर मुझे आईआईटी करनी है. मैंने कहा कर लेना यार, क्या है, अभी 6th में है, 12th में होती है. कि ठीक है आप जाना मत 12th में, जब तक मैं 12th में आ जाऊँ आप यहीं रहना. एक वो मोमेंट थोड़ा मेरे लिए टची था. इसके बाद है उर्मिला, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, बट उसका कैरेक्टर मुन्ना भाई की तरह है. वो मतलब सीजर को ऐसे पकड़ती है, अभी भी ऐसे पकड़ती है, बोलते हुए बड़ी स्पीड में मुड़ जाती है. ये फिर जो है एक जो मैंने रखा था कि फ्राइडे सैटरडे में टेस्ट रखता था क्लास में, तो टेस्ट में जो क्लियर हो जाता था तो हम मूवी देखते थे प्रोजेक्टर में. जो क्लियर हो जाता था वो बार सभी देख लेते थे चीटिंग करके, कैसे करके, इस मायने होगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता था. मूवी ओवर होती थी, 9-10 बजे सोने जाते थे. मॉर्निंग में जब मैं उतरता था मेरे रूम से, तो बोर्ड पे डायलॉग्स लिखे हुए होते थे. डायलॉग को थोड़ा निखिल करके एक स्टूडेंट वो चेंज कर देता था, वो मेरे ऊपर लिख देता था. केजीएफ का लिख दिया, इफ यू थिंक यू आर बैड, ऐसे ऐसे बहुत सारे लिख दिए, क्लैश ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. धवल जो है वो कहता था मैं आपकी पानी की बोतल तभी भर के लाऊंगा जब आप मुझे किटकैट दोगे. मैंने कहा एक पानी की बोतल एक किटकैट में नहीं लेके आ जाऊंगा ना पानी की बोतल. वो भी लिख देता है बोतल वाला धवल. मतलब डेली ये चलता रहता था. फिर एक मूफीज करके स्टूडेंट है, उसको देख के मुझे मेरा याद आता है कि हाँ मैं भी उसकी तरह होता था, एकदम डिसिप्लिन लाइफ. मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, 4 बजे उठ रहा हूँ, वो भी उठ जाता था. आप कितने बजे उठे हैं? रूम में आके नॉक करता था, आप सो रहे हो जग रहे हो? सो रहे हो, ठीक है सो रहे हो. अरे मैंने कहा मूवीज क्या है. तो मतलब ये था, मैं लेट नाइट तक मेरे पढ़ता रहता था. तो मैं सुबह एक्सरसाइज करने जाता था, वो सुबह मिल जाता मुझे नीचे, वो भी चालू हो जाता एक्सरसाइज करना. तो उससे लगता मैं 5 बजे उठा तो 4:45 आ जाता. मैंने कहा रोज सुबह उठते ही है तो पुशअप तो उठक बैठक करवाने लग जाता है. मैं जल्दी चला जाता था, फिर तो और जल्दी आ जाता था. तो उसे पता चला कि हाँ मैं सोता ही नहीं हूँ रात को,
सब एक वो अपना अलग ही किट विट लेके आ गया, अपने बाहर से पत्थर वत्थर लेके आ गया, एक्सरसाइज करने लग गया। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट जो है द्वारका ट्रिप जो थी, वो एक बहुत अच्छी ट्रिप थी मेरे लिए, मतलब क्लोज आ गए थे। उदय करके स्टूडेंट, वो बड़ा क्लोज आ गया था मेरे, उसके फादर भी। मतलब जो उदय की इमेज है वो वैसा कि हाँ उदय ऐसा ऐसा ठीक है वैसा है, बट कुछ है उसमें, अलग है उस बंदे में। एक जानवी करके स्टूडेंट है, उसके होम पे गया था जब, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस ही था। तो ये कुछ स्टोरी थी। दैट्स इट, थैंक यू। वाओ हेमंत सर, थैंक यू सो मच। आप जैसे जैसे अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, आई एम श्योर बाकी टीचर्स भी अपने एनवायरनमेंट से उसी तरह का कुछ एनर्जी और ऑरा लेने की कोशिश कर रहे होंगे, एक्सपीरियंसेस लेने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं जैसे आपको बता रहा था कि सुपर 30 के अगर कोई मूवी विसामो पे बनेगी तो ऋतिक रोशन वाला रोल जो है शायद आपको ही करना पड़ेगा, यू नो, बिकॉज ऑफ द इक्वेशन यू हैव विद द किड्स एट दैट लेवल। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो ट्रिप्स, एजुकेशनल ट्रिप्स और द्वारका के ट्रिप की आपने बात की, दीज आर सच लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, यू नो, दैट मैं विसामो के सारे बच्चों को लेकर, यू नो, 3 महीने पहले आई हैड टेकन देम टू अ ट्रिप टू लोथल, जहां हमने लोथल का हेरिटेज म्यूजियम देखा, एंड देन वी हैड गॉन टू वन प्लेस कॉल्ड आपनो मलक, बैक टू बचपन, एंड देयर द किड्स immediately, you know, there were girls who were playing you know, volleyball, there were girls who want to play cricket, and girls who actually sang and showed us some creative things there we could see the power and passion of Visamo, that yes, together we are a power to reckon with. And I'm sure hamare har ek bacche mein there is some kind of a creative talent. You obviously being from the educational field, you will like to know more about the differential calculuses and the algebras they can do. But I think जब आप द्वारका गए थे, एज वी वर डिस्कसिंग, उसके बाद से शायद उदय का आपके प्रति एक प्रेम और इक्वेशन भी चेंज हो गया था, क्योंकि ही स्टार्टेड लुकिंग एट यू एज अ फादर फिगर। शायद उसको कहीं लगने लगा कि अब तो मारा पप्पा ने ओळखे છે એટલે હવે દાવ થઈ જશે, માપ મારે ઉપર से, राइट? So thank you so much Hemanji for such wonderful experiences. Next, again something innovative and creative from a teacher who is equally innovative and creative. I invite Hemali ma'am to please join us and share her presentation with us. Hemali ma'am. Good evening, everyone. My name is Himali. I'm a counselor at Visamo, and I'm the newest addition to Visamo. So I'm welcoming all to Visamo through audio clip. And in this journey, Bhakti is going to be my co-driver. So Bhakti will play an audio. And I want all of you to, listen to it carefully, because then I'm going to share something which, then you'll actually know how Visamo sounds. So Bhakti ma'am. So ये जो है विसामो का शाम का टाइम है, 5 से 6 बजे का। तो 5 से 6 में सनराइज डायरेक्टली नहीं आ रही है, पर बहुत सनी होता है। सारे बच्चे दे स्टार्ट फ्लोइंग ऑन द विसामो कॉमन एरिया एंड दे स्टार्ट प्लेइंग, and you can see, one group playing. So now these children who are shouting, I was imagining they're playing kho. So the dancer is chasing a player, and the player is so excited and fearful that she'll get caught. And then you will see Guru Mata जो वहाँ बैठे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो उनके साथ बतिया रहे हैं, एंड देन पटेल काका पीछे से अपने केबिन से झांक रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एंड यू विल सी अमी मैम समवेयर इन द बैकग्राउंड, तो शाम का 5 से 6 का जो समय होता है जब बच्चे खेलते हैं, एंड दिस इज हाउ विसामो साउंड्स between that time. So there's one more clip which I would like Bhakti to play.
विसामो में शाम को बहुत बार प्रोग्राम होता है बिफोर डिनर. सो यू नो व्हेनेवर देयर इज अ प्रोग्राम बिफोर डिनर, बच्चों को बोला जाता है कि डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होना है, और विसामो का डाइनिंग एरिया काफी बड़ा है. तो यू नो दिस इज द टाइम लाइक 6:45, 6:30, समथिंग लाइक दैट. बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है और उनका एक्चुअली डिनर 7:30 को होता है. उसके पहले दे स्टार्ट पोरिंग इन दिस डाइनिंग एरिया एंड दे स्टार्ट गेटिंग कलेक्टेड. तो यू नो दे आर कैचिंग अप विथ ईच अदर एंड हैविंग फन, चिलिंग आउट. और जब ये क्लिप में सुन रही थी ना, तो मुझे इन माई माइंड्स आई, मैं वहाँ पे खड़ी थी उस डाइनिंग एरिया में इन वन कॉर्नर, एंड आई वाज लुकिंग एट देम, यू नो के such energy and such happiness. And also I think I'm missing Visamo because of, you know, when I went there I realized that I'm so much missing it. So yeah, thank you so much all of you to hear this. Wow, Hemali ji, you know, such a wonderful power of visualization. Thank you. Close your eyes and feel Visamo in your heart. Thank you so much. Thank you so much. Well, केबीसी के राउंड के बाद जो आंसर्स हम नहीं दे पाए और फियास्को को देखते हुए एक और सीनियर टीचर ने बोला कि आऊ तो ना चाले, હવે લાગે છે કે મારે ફરીથી આવું પડશે. And that's why, keeping in mind the senior kids who maybe are easy to locate or maybe are difficult to figure out, I am inviting our next quiz master, Nipa ma'am, to please join us and share her creative thoughts with us. Nipa ma'am. थैंक यू सुभज्योत जी. विसामो में हम बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बातें होती रहती हैं, तो उनकी खूबियां और खामियां हम जानते हैं. तो उसी के ऊपर मैंने एक क्विज डिजाइन की है. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बात है ये सतयुग की, बात है ये सतयुग की, कृष्णकिंधा के राजा की, सुग्रीव जी के भ्राता की, बोलो मैं कौन, जानो तो मैं मानूं आपको गुरु. वाली. Yes, very good. Very nice, very nice. Second one, निंद्रा देवी प्रसन्न सदा, निंद्रा देवी प्रसन्न सदा, पढ़ाई के वक्त भी साथ रहे सदा, जीत मेरे नाम का पर्याय, पर निंद्रा देवी हराए सदाए, बोलो मैं कौन. विजय. Yes, Wow, Vijay Kumar. lovely. Wow. Very nice, very nice. Yes. थर्ड वन है, मैं रहता मेरी दुनिया में, मैं रहता मेरी दुनिया में, अजब गजब की बातें मेरे दिमाग में, विहरता मैं अपनी दुनिया में, जय मेरे नाम में, बोलो मैं कौन. Anyone? जयराज. जयराज. अरे वाह. Anyone? Any option? हेमंत सर बताइए. Yeah, हेमंत सर. option. Yes, राजसी चावड़ा, जिज्ञासा चावड़ा या विजय चौधरी. विजय चौधरी. विजय फोर्थ वन है, पढ़ाई मेरी होश, मम्मी मेरी खुश, दिमाग मेरा तेज, कम बोलना मेरी फितरत, बोलो मैं कौन, जानो तो मानू मेरे आपको गुरु. क्या बात है. बताइए सर, कौन कम बोलता है. मयूरी. नो. तेजस्वी. Yes, I just. Very nice, Right, very right. nice, very nice, very nice. गीत रसिक हूँ, गीत रसिक हूँ, गाऊं मैं गीत, शुभ्र श्वेत या सफेद, मेरे नाम का है पर्याय, बोलो मैं कौन, जानो तो मानो धवल. आपको गुरु. धवल. Yes, धवल. Wonderful, Wow. sir. Wonderful. Very nice. Very nice. Very nice. नेक्स्ट वन है, तू बड़ी मैं छोटी, तू बड़ी मैं छोटी, एक ही पाठशाला पर हमारी ब्रांच अलग, गणपति की जो पत्नी वो ही है मेरा नाम, बोलो तो मैं जानू आपको गुरु. Yes. नेक्स्ट वन है, मैं नाचूं
मैं नाचू मन बोले मेरा नाच, बम बम बोले ही है मेरा डांस, बातें बनाओ दुनिया भर की, सुशांत की जीएफई तो है मेरा नाम। प्रिया। प्रिया। धन 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 वाणी मेरी फूटी, डिबेट में कर दूं सबकी छुट्टी, दिन होने पर सूरज क्या करे, जो सूरज करे वो ही मेरा नाम। उदय। Yes, Wow, wow, very nice, very very teachers, nice. salute, Very salute. nice. Happy Teachers Day to all of you. And ninth one है, कंप्यूटर है मेरी जान, कंप्यूटर है मेरी जान, बुक पढ़ना है मेरा काम, 2 मिनट में पकने वाली मैगी मेरा उपनाम, बोलो मैं कौन, बताओ तो मानूं आपको गुरु। हेलो। दृष्टि। नो, दृष्टि कौन? दृष्टि। Yes, Drashti. Yeah, wow. And last Maggie. one, रामानुजन और मैं दोनों समान, रामानुजन और मैं दोनों समान, क्यों? क्योंकि हम दोनों का प्रिय विषय समान। मैं अंश दिव्यता का, मैं अंश दिव्यता का, ये पहचान है मेरे नाम की, बोलो मैं कौन? दिव्येश। Divyesh, yes. See, this is really proud of all the teachers, क्योंकि कितने अच्छे से हमारे बच्चों को जानते हैं आप। I really salute all the teachers. Please. Ma'am, I will like to salute you. I will request all the teachers to once, unmute yourself and clap for Nipa ji, because Thank you. या Thank you उन्होंने very much. जो इमोशंस के साथ हमारे बच्चों के पर्सनालिटी को हमारे सामने प्रेजेंट किया, आई थिंक वी कैन ऑल सी द काइंड ऑफ पैशन, हार्ड वर्क, इंटीग्रेट डिटेलिंग उन्होंने की, दैट रियली शोज हाउ एवरी विसामो किड्स टीचर इज passionate for their kids and their behaviors. Thank you so much, ma'am. This was really, the poetry that you did was really amazing. So all respected audience, friends, you can see that how every teacher at Visamo Kids Foundation have tried to add their own element of creativity, add their own magic of Dastane Visamo from the bottom of their heart. I again wish all of them a very happy Teachers Day. I am also, I can see now that why Visamo Kids Foundation is a real force to reckon with, why the teachers are actually, they got an award yesterday because it was well deserved for this foundation. I now invite our program coordinator and one of our aggressive members of the group, Krunal Bhai, to please come in and give us some recent and live updates on life at Visamo. Krunal sir. Good evening to all. Myself Krunal Patel. I had joined Visamo in year 2015. So I had almost completed 5 years with Visamo, and अभी तक का जो जर्नी मेरा रहा है वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। तो जब ये वेबिनार का प्लानिंग हो रहा था तो मुझे बोला कि आप क्या बोलेंगे, तो फिर मुझे बोला गया कि आप बोलिए कि आप विसामो अगर कोरोना के बाद जब भी स्कूल खुलते हमारे बच्चे वापस आते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आप देख रहे हो। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। So we as team Visamo Kids are struggling to adapt to this change, but if we do not adapt, we will become obsolete. So let us see what are the key challenges facing us. So first is social distancing. For social distancing among kids in the hostel, we need behavior change communication, BCC, regular conversation and use of other media to train the kids and help them adapt the change and change their behaviors. The Guru Matas, teachers and other caregivers at Visamo will be trained to help kids adapt to the change. Second one is online education. As we all know, online education will be the norm even if schools reopen. With the given infrastructure
at Visamo Kids, we may not be able to cater the requirements in the current times. So we have prepared a proposal addressing these requirements and started raising funds for the same. Next is staff readiness. हम सबको पता है कि अभी कोरोना के दरमियान हम सब स्टाफ वर्किंग फ्रॉम होम पैटर्न में आ गए हैं। तो ये जो रूटीन हमें जो चेंज करना है उसके लिए वी आर प्रिपेयरिंग वन staff readiness document to enable the team to fall back into routine. Fourth is financial health. As we all know, ये हम सबके लिए टफ टाइम है सब कोरोना का। तो अभी आप सब जैसे जानते ही है कि चिल्ड्रन आर नॉट इन द कैंपस एंड देयर इज नो एक्टिविटी एट ऑल इन करंट टाइम्स. Child sponsorship are not getting renewed and funds have dried up. The expenses are also reduced, but a lot of recurring costs are prevailing, like salaries, maintenance, etc. So we are now exploring new ways of fundraising. Crowdfunding is prime strategy now. We are getting empaneled with diverse sources. Next is digital presence. COVID has restricted us physically, but given us an opportunity to expand our presence in the virtual world. We are completing 98th episode of online engagement tonight. This is helping us to expand our outreach. Sixth is planning of diet. अगर बच्चे वापस आ जाते हैं और हॉस्टल में रहने लगते हैं तो हम सबको पता है कि कोरोना के लिए एक मुख्य हथियार है हमारी इम्यूनिटी. So immunity boosting food should be focused now. Suraksha Kavach in the form of nutritious diet, breathing practice will be introduced to help children cope up better with the virus. And last is voluntarily engagement. Online engagement of kids with volunteers will be focused upon. So COVID has taught us to be compassionate, to be sensitive towards each other and acknowledge whatever resources we have. So we will practice mindfulness in our words, thoughts and actions. Thank you for hearing me out so patiently. There may be many more points that need to be put in place at Visamo, and we will do all that if it is possible to have the kids back. रौनक of the campus has to be revived. Campus का जो रौनक हमारे बच्चों से है उसे हमें वापस लाना है. Thank you so much. Thank you so much, Krunal bhai. In a very categorical fashion, you have shared, all the readiness and the problems at Visamo Kids Foundation. दो चीजें मैं बताना चाहूंगा सारे ऑडियंस को कि आज अगर वैसे देखा जाए ना तो हमारी क्रिकेट की बी टीम उतरी थी आज मैदान में. Because there are, we know people around in the back who are there as the main players of all these years, but they today launched a team with us and said that go out and perform to your best. So Krunal ji, as we can see that, with the help of all our teachers, I don't think we have played badly. I think we have really performed and we have showed that we are there, as a backup for our children in all these pandemic conditions. But friends, there is a call for action. What Krunal said is also very true, that while we are building up a dream, और ये जो एक छोटे से सीडलिंग में से आज ये वट वृक्ष बना है, इसको मेंटेन करने के लिए हमें और आपको हाथ में हाथ मिलाकर साथ में चलना पड़ेगा. जितने भी लोग हमारे यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे मेन स्पीकर्स हैं, कुछ दिन पहले मैंने अपने एक वेरी सीनियर कलीग को सुना था कि पैशन, प्रिविलेज, ये सब चीजें उन्होंने सीखी है इस संस्था से. आई थिंक वी हैव टू लिव बाय दैट and we have to help each other to grow this organization to new heights, क्योंकि हमारे साथ ही हमारे बच्चे भी बढ़ रहे हैं and they are equally passionate. और हम आज बहुत खुश हैं. हमें लग रहा है हमने ये मैच जीत लिया. अब तक हमारे अगर एक जन के पास भी ये बात पहुंच जाए तो हमें लगेगा कि today's 98th conference has made a difference. और आप हमारे साथ सेलिब्रेट करें ना करें, हम तो करेंगे. इसलिए अब हमारा जो अगला सेशन है वो कुछ गानों का होगा. एक गाना जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के ड्रीम्स को डेडिकेट करें और एक गाना जो हमारे अपने एडुकेटर्स के लिए है ताकि हम खुद को मोटिवेट कर सके. So with your due permission, Krunal bhai, let's have the next session. I think again we will have our DJ Bhakti to help us, play this session out. So let's sing to some songs and celebrate Happy Teachers Day and today's webinar. Dastane Visamo. Thank you.
मुझको बता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता Thank you, DJ Bhakti. May all our child who are here with us, they have a manzil and we help them to reach there. Now let's look at the next one. And this is for all of us. We won't stop. जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही Subhojit sir, please unmute yourselves. Actually बहुत जोर जोर से गा रहा था और मुझे लगा मुझे thank you so much Bhakti ji. So to the dear audience, thanks for being with us at Dastane-e-Visamo in our little way, in our own creative way. Every teacher of ours, they have worked hard for the last 1 week trying to figure out how they can be more creative, how they can be more emotional, how they can be more passionate, and how they can be more meaningful in this journey called the Visamo Kids Foundation Way. So thank you to all the teachers for their lovely creative thoughts. I now request Krunal Bhai to give a Thanksgiving speech and bring an end to this session. Krunal sir. जी, thank you so much, sir, for giving me to chance to give Thanksgiving. So I would start with thank you so much, dear viewers, for being a part of the online journey. ये आप सबका प्यार और आशीर्वाद है कि हम 98th एपिसोड तक आ गए. I herewith thank the friend of Visamo, PR expert, and today's moderator, Subhojit sir. I thank Unmesh sir for being behind the scene and training me to manage role in social media. और दीक्षित जी का मैं इस तरह से भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैंने ये टॉक के दौरान मैंने कभी-कभी तो हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स को जब भी बातचीत होती थी तो मैंने उनको रात को भी मैसेज दिया कि सर मुझे हेल्प चाहिए, और उन्होंने कोई भी टाइम पे कभी भी जहाँ पर भी मुझे चाहिए मार्गदर्शन वहाँ पर कभी भी मतलब वो हर बार मेरे पीछे खड़े थे. सो थैंक यू सो मच सर. I thank all the speakers who showed trust in us and supported the cause by joining the talk series and the webinars. We had the alumni, VTG members, partnering schools, grassroots NGOs, Calorex group members, our dear donors, volunteers, and friends of Visamo Kids who participated in the Partners in Change Speak series of Visamo Kids. It meant a lot to us. I thank Shroff ma'am for leading way for us. I also want to thank each and every member of Visamo Kids for participating in this webinar with smile and energy. Finally, I would like to end by saying a word, Ubuntu, which means humanity. I am because we are. मैं हूँ क्योंकि आप सब हैं. Thank you and namaste. Thank you so much.